بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ انعام آیت نمبر 14 to 18 دیکھتے ہیں، اور اس آیت میں انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کیا میسیج جو ہے وہ مل رہا ہے دیکھتے ہیں. بہت خوبصورت میسیج کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیابی کس چیز میں رکھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے خوف کھاتے تھے، یا کس چیز سے انہیں بہت خوف ہوا کرتا تھا، یا پھر ایک توحید کا عقیدہ انسان کا کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا اس میں جو ہے خلاصہ ہوگا. بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ سب کچھ بیان کیا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم. قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے ذرا ان سے، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں بنا لوں اپنا ولی، جبکہ اسی نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو، اور وہی سب کو کھلاتا ہے اور اسے کوئی نہیں کھلاتا ہے. یعنی روزی سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رہوں سب سے آگے، یعنی فرمانبرداری میں، اور یہ بھی کہ نہ ہو جاؤں میں مشرکوں میں سے، یعنی تم مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی حکم دے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آیت نمبر 15. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے بے شک مجھے بھی ڈر ہے کہ اگر میں نے نافرمانی کی میرے رب کی، تو ڈر کس چیز کا ہے؟ عذاب سے، یعنی دو چار ہونے کا، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. آیت نمبر 16. من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین. اور جس کسی سے ہٹا لیا گیا عذاب اس دن، سو یقیناً رحم کیا اللہ نے اس پر، اور یہ رحم ہونا اور یہی سب سے بڑی جو ہے وہ کھلی کامیابی ہوگی. آیت نمبر 17. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اگر پہنچانا چاہے اللہ تجھے کوئی تکلیف تو نہیں کوئی دور کر سکتا اسے مگر صرف وہی، اور اگر وہ نوازنا چاہے تجھے کوئی خیر سے تو وہی اس پر پوری قدرت رکھتا ہے. آیت نمبر 18. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. اور وہ پوری طور پر غالب ہے اپنے بندوں پر، اور وہی بڑی حکمت والا اور باخبر ہے. یقیناً بے شک
सब कुछ जानता है, वो सबको सुनता है। सोचिए कितना खूबसूरत रब है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे अल्लाह सुब्हान तआला, बताइए ये इतनी जो है इतनी बातें बताने के बाद भी इनसे जरा पूछिए जरा, इतना खूबसूरत रब है, उसको छोड़कर अगैर अल्लाहि अत्तखिज़ु वलिया, क्या इतने खूबसूरत रब को छोड़कर मैं किसी और को वली बना लूं? ओहो, और वो रब तो कैसा है, फातिरिस समावाति वल अर्द, उसी ने पैदा किया है आसमान को भी और जमीन को भी। सुभान अल्लाह। सोचिए इतनी बड़ी जात है, आप सोचिए इतने बड़े रब का कलाम आप पढ़ रही हैं, उसकी बड़ाई को अपने अंदर महसूस करके देखें। वो जात ऐसी है, इतना खूबसूरत रब है, उसको छोड़कर मैं किसी और को वली बना लूं। सोचिए यहाँ पर वली की बात की जा रही है। क्या पता चला, जो लोग अल्लाह सुब्हान ताला को काफी नहीं समझते हैं, न सुनने वाला जानने वाला, नाउज़ बिल्लाह किसी और को वली बना लेते हैं कि वो हमारे वली साहब पीर साहब कब्रों में जाकर भी 10,000 मील से भी हमारी बातों को सुन लेते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। हर तरह बोल रहे हैं इतने प्यारे रब को छोड़कर किसी और को वली बना लो। अच्छा, रब तो ऐसा है जिसने आसमानों और जमीन के सब कुछ पैदा किया, ठीक है, और वो जात कैसा है, वह हुवा युतइमु वला युतअम, अल्हम्दुलिल्लाह। और वही जो है रोजी रोटी देता है, वो खिलाता है सबको और नहीं उसे कोई खाने की जरूरत, और नहीं वो खिलाया जाता, उसको खिलाया नहीं जाता है। देखिए जरा, तुम्हारे वली तो ऐसे हैं, तुम्हारे देवी देवता तो ऐसे हैं कि तुम उनको जो है नजर नियाज फातिहा के लिए जो मिठाइयाँ चढ़ाते हो, फ्रूट चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, जबकि रब ताला तो ऐसा है कि वो तुम्हें खिलाता है, उसको खाने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे वलियों के कब्रों पे जाकर तुम क्या करते हो, चढ़ावे चढ़ाते हो। हाँ भाई, तुम्हारे वो वली खाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला वो जात है जो सबको अता करता है, उसको ना किसी नजर की जरूरत, ना किसी फातिहे की जरूरत, और ना ही तुम्हारी जो है ये बिल्कुल लड्डू तुम्हारे पूरियों की, ना ही तुम्हारे हलवे की, ना किसी चीज की जरूरत है। ये चढ़ावे तुम अल्लाह के सामने, जो तुम अपने वलियों के कब्रों के सामने चढ़ाते हो, अल्लाह ताला बोल रहे मेरे सामने इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। और जिस तरीके से देखिए जो अल्लाह को नहीं मानते वो जाकर कब्रों पे, बुतों के सामने और न जाने अपने पीरों के सामने ये चढ़ावे चढ़ाते, बिल्कुल उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हान तआला को जरूरत नहीं तुम्हारे इन सब खानों की, और जिन्हें तुमने वली बना रखे, अब देखो जरा उनको तुम कैसे चढ़ावे चढ़ाते रहते हो। अल्लाह अकबर। असल बात क्या है, देखिए हर तरह बोल रहे हैं कि देखो, अच्छा देखिए कि कितनी खूबसूरत बात है, और कोई ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आ रही है। अल्लाह ताला देखिए कि इतने आसान अल्फाज में बता रहे, कुल इन्नी उमिरतु अन अकूना अव्वला मन अस्लमा वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन। बहुत क्लियर बात, आप इनसे कह दीजिए, इन्नी बेशक मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहले जो वो शख्स हो जाऊं जो फर्माबरदार है, यानी मैं सबसे पहले अपने आप को अल्लाह के हवाले करता हूँ। अस्लमा है, देखिए अपने आप को अल्लाह के ताबे में दे देना, अपने आप को सरेंडर कर देना। अल्लाह अकबर। चलिए आप जवाब दे दे इससे कि अल्लाह तूने अपने रसूल को ये हुक्म दिया, मैं भी इसी चीज को कहती हूँ अल्लाह, मैं सब, यानी कुरान मुझ पर पहुंच गया ना, मुझे आज पता चल गया ना, मैं सबसे पहले अपने आप को जो है तेरे हवाले करती हूँ। कहिए आप क्यों? क्योंकि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, दैट मीन्स सारी उम्मत को ता क़यामत जो लोग भी कुरान पढ़ेंगे उनको इस आयत पर जो है अमल करना है। आप कहिए अल्लाह मैं भी अपने आप को सौंपती हूँ, तेरे हवाले करती हूँ, और मैं ये भी कहती हूँ अल्लाह ताला तूने कहा है ना कि देखो देखो मुशरिकों में से मत हो जाना, तो कह दीजिए अल्लाह मैं शिर्क करने वालों में से ना हो जाऊं। जवाब दीजिए। देखिए जब आयतें आपको समझ आएगी ना, पढ़ते पढ़ते आप बात करोगे, अच्छा अल्लाह ताला आप ऐसा बोल रहे हो, ठीक है मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तेरी आयतें ऐसे मुझे समझ आ रही, गोया कि तो मुझसे बात कर रहा है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं बोलो बोलो, बेशक मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे आगे रहूं फर्माबरदारी करने वालों में, और देखो देखो वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, देखो जो है वो मुशरिकों में से मत हो जाना। तो जवाब दे अल्लाह मुझे शिर्क करने वालों में शामिल नहीं करना। तो कितनी सादी सी बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ आ रहा है सब कुछ।
यानी यहाँ पर देखिए कि ये कहा जा रहा है कोई आपको कुछ भी कहे, आपको न फिरके में बचना है बल्कि आपको क्या कहना है कि मैं मुसलमान हूँ। यही हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। अस्लमा, अस्लमा देखिए अस्लमा से इस्लाम निकला है, इस्लाम से मुसलमान निकला है, तो इस बार जो है वो मैं मुसलमान होती हूँ। आप भी जवाब दे दे इंशाल्लाह कि अल्लाह मैंने भी अपने आप को तेरे हवाले कर दिया। और आपको और सबसे बड़ी बात, हालांकि ये बात बहुत जो है वो गट्स के साथ जो है वो कहनी पड़ती है, देखिए बातें समझाने के साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला आयत नंबर 15 में अब हमें क्या बता रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बता दिया कि आप कह दीजिए कि इतने खूबसूरत रब को छोड़कर जो रात और दिन की बातों को जानता है, दिल के भेद को जानता है, और इतने खूबसूरत रब को छोड़कर जो है मैं किसी और को वली बना लूं। अच्छा, वली का देखिए अरबी में बहुत डेप्थ मानी है, ठीक है, बहुत ही गहराई है इस एक वर्ड में। यहाँ पर जो असल में वली वर्ड इस्तेमाल किया गया है तो ये माबूद के मानी में इस्तेमाल किया गया है कि अल्लाह को छोड़कर मैं किसी और को अपना कारसाज अपने लिए जो है वो सफिशिएंट समझ लो अल्लाह को छोड़कर, तो नहीं, ठीक है। फिर उसी के साथ साथ अल्लाह की जात की इतनी बड़ाई बयान की गई है, दूसरे वलियों में तो ये खासियत है भी नहीं, और उससे भी तो क्या कहे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने जो कहने को कहा मुझे और आपको भी वही कहना है कि देखिए कि जब लोग अल्लाह के खौफ से बेकार शख्सियतों की वलियों की जो है वो इबादत करना नहीं छोड़ते हैं, तो एट लास्ट अल्लाह ने ये कहा कि तुम ये कह दो कुल इन्नी अखाफु इन अफैतु रब्बी, कि आप कह दीजिए बेशक मैं तो डरता हूँ किस बात से, इन अफैतु, इता पे पेश देखिए कहीं पर भी आएगा तो वो मैं का मानी देता है, मैं, यानी अरबी में तू यानी मैं, ठीक है, तापेश तू यानी मैं, इस तरीके से आप जो है वो याद रख सकती हैं। क्या किस बात से, मेरे रब से मैं डरता हूँ कि अगर मैंने उसकी नाफरमानी की तो किस चीज से डरता हूँ, बड़े दिन के अजाब से, कि बड़े दिन के अजाब से मुझे दो चार होना पड़ेगा। देखिए बहुत क्लियर बात है जो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये कह दिया। जब देखिए कि कभी भी आपको कोई डराए, आपका कोई प्यारा, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, आपके दोस्त हो, पड़ोसी हो, कोई भी हो, अगर क्या आपको वो दीन का नाम ले लेकर वो डरा रहे हैं आपको, और आपको ये कहते हैं कि भाई तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि अक्सर देखिए कि शिरकिया कामों में लोग डरावे बहुत देते हैं। इस चीज को मैंने भी बहुत देखा है, अच्छा तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, ओहो अच्छा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो यही जुमला आप कहिए जो यहाँ पे कहने को कहा जा रहा है। क्या कहने को कहा जा रहा है कि नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है कि बड़े दिन का अजाब मेरा रब मुझे दे देगा। कोई भी बस एक म्यार रखिए अपने लिए, कोई भी आपको अल्लाह के नाफरमानी के काम करने को कहे, ये जुमला आप बोल दीजिए, लेकिन इस जुमले को बोलने के लिए बहुत बड़ा एक धारस चाहिए अपने अंदर, गट्स चाहिए हमें, कि जब कभी आपको कोई लालच दे दीन के रास्ते को छोड़ने के लिए, डरावे दे, धमकाए, आपको इस काम को छोड़ने के लिए कहे, इस रास्ते को छोड़ने के लिए कहे कि भाई इस काम को छोड़ दो बाकी तुम कुछ भी करो, आप इस साथ वो कह दीजिए। कभी कभी देखिए कि घर के लोग चाहे वो पेरेंट्स हो, शौहर हो, बच्चे हो, ऐसे डरावे देते ऐसे डरावे देते, यकीन करिए कि जब भी बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स से हमको ये फीडबैक मिलता है, हमने चूंकि इस सफर को शुरू किया, लोग हमें इतने डरावे दे रहे हैं, ओहो तुम तो बड़ी अब जो है बिल्कुल दीनदार हो जाओगी, बताओ भाई तुम्हारे बच्चे से रिश्ता कौन करेगा, तुम इतना दीन पर अमल करोगी और तो बिल्कुल अपने बच्ची को जो है ऐसे रखोगी, तुम खुद भी इतना जो है वो ढाक छुपा रही हो अपने आप को, इतना तुमने नकाब करना शुरू कर दिया है, इतना हिजाब करना शुरू कर दिया है, व्हाटएवर, जो भी एक समाज में लोग ये समझते हैं कि दीन पे चलना दुनिया की रुकावट है, नाउज़ुबिल्लाह, या फिर दीन के जो है वो हुदूद में रहकर अल्लाह ने जो दायरा हमारे लिए बना रखा है उसमें रहकर क्या एक औरत या मर्द क्या तरक्की नहीं कर सकती है। ये गलत फहमियां होती है कुछ दुनियादारों की, जो दुनिया सोचते रहते हैं। इसी तरीके से आपको कभी इस रास्ते से कोई रोकने की कोशिश करे, ये कहो, चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका शौहर हो, कोई भी हो, आप ये कहो कब्र में आप मेरे साथ आने वाले हैं, देखो बेटा मुझे कब्र में अकेले ही जाना है, आप में से कोई मेरे साथ नहीं आएगा। यानी
इतना शऊर ये कुरान मुझे और आपको दे रहा है कि आपको अगर कोई भी दीन से हटने की बात करता है तो फौरन आप ये जवाब दें उसको, नहीं मुझे डर लगता है कि अगर मैंने अल्लाह के रास्ते को छोड़ दिया तो बड़े दिन का अजाब मेरा अल्लाह ताला मुझे दे देगा। नहीं तो क्या पता चला, बहुत सीधी सी बात, नाफरमानी के बाद पकड़ जरूर आती है। दुनिया में इंसान नाफरमानी के काम करेगा, कोई बात नहीं, अगर वो दुनिया में पकड़ा नहीं जा रहा है तो अपने आप में उसको कामयाब ना समझे अपने आप को कि लो भाई मैंने इतनी नाफरमानी के काम कर लिए, लो मैं तो नमाजें भी नहीं पढ़ती, मैं तो दीन पे भी अमल नहीं करती, मैं तो कुरान क्लास भी नहीं ज्वाइन की, मैं तो कुरान को भी नहीं समझती हूँ, मैं तो कोई अल्लाह के हुक्म पे अमल भी नहीं करती हूँ। बताओ आया मेरे ऊपर कोई अज़ाब? बताओ मुझसे कोई परेशानी आ रही है? तो उसे कहो है ना कि वो अभी दुनिया में नहीं तो बड़े दिन के अजाब में पकड़ेगा तो पकड़ेगा, उसका वादा कभी झूठा नहीं हो सकता है। आज अगर दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला पकड़ नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुमकिन है कि कल आखिरत में आपकी पकड़ हो जाए। अल्लाह अकबर। ठीक है, तो बिल्कुल इस बात को याद रखिए कि आपको कोई भी आपको जो है अगर नाफरमानी के काम करने को कहे तो इस तरीके से आप उनको कह सकते हो, नहीं मुझे बड़ा खौफ आता है कि अल्लाह ताला मेरी पकड़ ना करे। यकीन करिए कि इतने लोग रुकावटें डालते हैं, इतने लोग। अभी भी देखिए कि किसी दिन इंशाल्लाह हम आधे घंटे का वक्त हमारे पास रहता है, 10-15 मिनट हम ऐसा रखेंगे, अभी थोड़ा वक्त गुजर जाने दीजिए, 1-2 महीना, देन आप लोगों से फीडबैक हम लेंगे कि जब आपने लोगों के सामने इस बात को जाहिर किया कि मैं अल्लाह के कलाम को समझने की क्लास ज्वाइन की है मैंने, या मैं उसको समझकर पढ़ने की कोशिश करती हूँ, आप उस चीज को लिख कर रखिए, अपने पास लिख कर रखिए कि किस तरीके से लोग आपको क्या क्या कहते हैं, जुमले को लिख कर रखिए। यकीन करिए एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग खुद आपके पास आएंगे अपने मसले मसाइल पूछने के लिए, अपने दिलों का हाल आपको बताने के लिए। पहले लोग नफरत करते हैं क्योंकि आप बिल्कुल समाज के बिल्कुल जो है वो अपोजिशन में आप चलती हैं। समाज वाले जिस हवा के रुख में चल रहे हैं आप बिल्कुल अपोजिट चल रही हैं, क्योंकि कुरान हमें देखिए कि समाज पर चलना नहीं सिखाता है बल्कि अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह के रास्ते पर चलना सिखाता है। और अल्लाह सुब्हान तआला ने उस बड़े दिन के कुछ अजाब में क्या होगा, बड़े दिन से कुछ यहाँ पर आगाह किया है। आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला बताते हैं वो बड़े दिन का अजाब ऐसा होगा, हाँ लेकिन मैं युफ़रफ़ अन्हु यौमइज़िन फ़क़द वहिमा, जिस किसी से हटा लिया गया वो अजाब उससे, यौमइज़िन उस दिन, फ़क़द कि दर हकीकत रहिमहू उस पर अल्लाह ने रहम कर दिया। दुआ करिए अल्लाह तो हम पर भी रहम कर दे, अल्लाह तो इस दुनिया में भी हमें अजाब से बचा के रख, आखिरत में भी अजाब से बचा कर रख। क्यों? अल्लाह बोल रहे हैं क्यों ये रहम, क्योंकि वह ज़ालिकल फौज़ुल मुबीन, असल में ये खुली कामयाबी है। देखिए जरा, असल में ये खुली कामयाबी है। और आज दुनिया वालों का हाल, या दुनिया में रहने के साथ साथ जो है लोग दीन पर अमल ना करते हुए दुनिया की कामयाबी जो हासिल कर लेते हैं वो लोगों पर वाज़ेह रहती है, जाहिर रहती है। किसने बिजनेस में अगर बहुत ज्यादा कमाल कर लिया, किसने एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज्यादा कमाल कर लिया, वो कामयाबी जाहिर नजर आती है। लेकिन ये फौज़ुल मुबीन क्या है, इसका ताल्लुक आखिरत से है। ने कहा कि जिस पर उस दिन रहम कर दिया गया और किस तरीके से वो अजाब से टाल लिया गया। तो भाई देखिए ये सडनली उस दिन नहीं होगा, सडनली ये हश्र के मैदान में नहीं होगा, तो कब होगा? इसकी तैयारी आज मुझे और आपको करनी है। नाउ ए डे इंशाल्लाह अगर मैं और आप अल्लाह के नाफरमानियों के काम से बचते रहेंगे, देन द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह सुब्हान तआला फौज़ुल मुबीन मुझे और आपको इंशाल्लाह अता करेंगे। तो क्या करना है, आज रब चाहे जिंदगी गुजार ले ताकि इंशाल्लाह वो फौज़ुल मुबीन अल्लाह सुब्हान तआला वहां पर अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि आयत अल्लाह ने मुझे और आपको समझने की तौफीक दी। यहाँ पर देखिए कि अब देखिए कि ये कयामत के दिन के अजाब के बारे में बताया जा रहा है। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो है जिसने इस दुनिया में जहन्नम से बचने वाले अमल किए, अल्लाह की नाफरमानी से बचने वाले काम किए, तो डेफिनेटली अल्लाह सुब्हान तआला उसको कयामत के दिन उस जहन्नम से बचा लेगा, उस आग से बचा लेगा। तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, जिसे बचा लिया गया असल में उस पर रहम कर दिया गया। देखिए जरा, जन्नत मिलना बड़ी बात नहीं है बल्कि जहन्नम से बचा लेना असल में बड़ी चीज है। और
بالکل یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے اور آپ کے شعور کو بیدار کر رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے تم کو، تم جو ہے اس بڑی کامیابی کو نہیں چاہنا چاہتے ہو، اس واضح کامیابی کو نہیں چاہنا چاہتے ہو، تمہیں چاہیے نا وہ. تو یہ دیکھیے آپ کہ یہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کامیابی کو نہیں پہنچ پاتے ہیں. سب سے زیادہ اللہ کی ناقدری وہ کرتے ہیں، اور ان کے دل میں جو ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی محبت ایک بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج وہ اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں. دیکھو شروع سے اگر ٹاپک کو ہم لیتے چلے آئیں، پورا توحید کے اوپر ٹاپک ہے. آپ نوٹس کر رہے ہیں چیز کو، پورا توحید پر ٹاپک ہے. کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری نافرمانی سے بچ جاؤ، میں جو کہتا ہوں اس کو کرو. اور یہ چیز مجھے اور آپ کو کہاں سے پتہ چلے گی؟ دیکھیے جس کا حکم ہے ڈیفینیٹلی اسی سے پتہ چلے گی. اور اللہ کی بات اللہ کی کتاب میں ہے. آپ اگر اللہ کے حکم کو یہاں وہاں سے تلاش کرنا چاہیں گے تو لوگ آپ کو اپنا بندہ بنا لیں گے. آپ لوگوں سے پوچھنے جائیں گے بتاؤ بھائی اللہ نے کیا فرمایا ہے، میں جب اگلے بندے کو نہیں پتا تو آپ کو کیا بتائے گا؟ یہ بہت بڑی یہاں پہ ایک شعور کو بیدار کرنے والی بات کی جا رہی ہے. فوز المبین چاہیے ابھی اپنی آنکھوں کو کھلی رکھیے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو ولی مت بنائیے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کو اپنا کارساز مانیے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد دیکھیے کہ اگر اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں اس جو ہے وہ جہنم سے نہیں بچایا گیا تو ایک بات بتاؤ تمہارے جو معبود ہے وہ تمہارا کیا کر لیں گے؟ جس کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر تم نے جن کو پکارنا شروع کیا ہے، یہ تمہارے بت، یہ تمہارے بزرگ ولی پیر، یہ کیا کر لیں گے؟ تو کیا ہے، انہیں آج چھوڑیے تاکہ اللہ سے آپ کا تعلق جڑے. اللہ سے آپ جڑیں گی تو ڈیفینیٹلی آپ جو ہے انشاءاللہ اس کامیابی کو پالیں گے. اگلی آیت آپ سے میں کہوں، اگر ایک ٹائٹل آپ اس کو دینا چاہے تو دے سکتی ہیں، اور یہ راز ہے، ایک راز جس کو اللہ نے اپنی اس آیت میں چھپا لیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ دیکھیے خوش رہنے کا نسخہ، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا ہے. آپ بھی سننے کے لیے بے چین ہے بھائی نسخہ وہ بھی خوش رہنے کا. ہاں بھائی میں تو خوش رہنا چاہتی ہوں. کیا ہے وہ؟ کیا ہے وہ نسخہ جو میرے رب کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے کہا ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو باتیں آپ مجھے پتہ چلیں گی انشاءاللہ بھی، وہ خوش رہنے کا فارمولہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور اس کو پڑھنے کے بعد تھوڑا سا کچھ سیکنڈ غور کریے گا کہ کیا واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ فرما رہے ہیں کہ یہ خوش رہنے کا ایک فارمولہ ہے. کیا ہے چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 17 میں سورۃ الانعام کی کیا ہے وہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ توحید کی طرف بھی توجہ دلائی جا رہی ہے. بالکل. اور آپ لوگوں سے ایک سوال بھی میرا رہے گا انشاءاللہ میں آیت کو مکمل کرنے کے بعد پوچھوں گی. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر پہنچانا چاہے تجھے اللہ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی دور کر سکتا ہے اسے، ہاں مگر وہی، صرف اس کے سوا کوئی تمہاری تکلیف کو دور نہیں کرتا ہے. نمبر 1 فارمولا. نمبر 2، اور اگر وہ تجھے کوئی خیر پہنچانا چاہے، تجھے کچھ نوازنا چاہے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو وہ اس خیر کو پہنچانے پر پوری قدرت رکھتا ہے. سبحان اللہ. بتائیے ذرا فارمولا کو سمجھ آیا؟ اور یہ ان لوگوں کی باتوں کی نفی ہے جو لوگ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ کیا کرے. اب دیکھیے یہاں پر کہ کچھ تعلق اس کا اصل میں کچھ ایسا ہے کہ جب آپ لوگوں کو اللہ کے راستے میں جو ہے وہ آنے کی دعوت دیتے ہیں، وہ کیا کروں میرا بڑا دل کرتا ہے پر آئی تھنک میں نہیں کر پاؤں گی، ارے تمہیں کیا پتا میری ساس کا مزاج ایسا ہے، ارے آپ کو کیا پتا میرے شوہر کا مزاج ایسا ہے، میرے بچوں کو تو میں چھوڑ کے نہیں آ سکتی ہوں، یا ایسا ویسا. ٹھیک ہے چلے اوکے ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری یہ بات کہ اب دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے منہ سے اپنی زبان سے یہ باتیں سنی ہے، ارے میری روزی روٹی میں برکت نہیں ہو رہی، ایسا لگ رہا ہے نا کسی نے باندھ دیا ہے میری روزی روٹی کو، ارے اس کو اولاد نہیں ہو رہی، اس کی کوکھ کو کسی نے باندھ دیا ہے، ارے اس کو یہ نہیں ہو رہا ہے، ارے وہ بچہ تو بہت اچھا تر لگتا ہے اس کو نظر ہو گئی ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا ہے. آپ ایک بات بتائیں، لوگوں کے پاس کام دھندے نہیں ہے کیا؟ وہ آپ کے جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جادو ٹوٹکے میں ہی پڑے ہوئے. نعوذ باللہ. مجھے اکثر جب میں لوگوں کی زبان سے یہ باتیں سنتی ہوں ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، استغفر اللہ بولتے بھی مجھے خوف آتا ہے کہ نعوذ باللہ
यानी कि अल्लाह सुब्हान ताला देना चाहते हैं आपको, लेकिन बंदे ज्यादा पावरफुल हो गए कि वो रुकावटें डाल रहे। बात अकल को लगती है क्या आपकी? ये आप भी देखिए, आपके सामने अगर कोई ऐसी बातें करे तो उनके शऊर को बेदार करिए। अच्छा, आप ऐसा कहती है कि अच्छा उन्होंने कुछ रुकावट आपके बीच में डाल रखी है, ओहो अच्छा आपको कुछ बंदिश कर दी है। तो एक बात बताएं आप, अल्लाह सुब्हान ताला ज्यादा पावरफुल है या फिर वो बंदा ज्यादा पावरफुल है? मतलब आप क्या कहना चाहती हैं कि अल्लाह सुब्हान ताला अता करना चाहते हैं लेकिन उसके बंदे रुकावट डाल रहे हैं? नहीं, देखिए आज इस आयत पर जिसका अकीदा थूक गया या जिसने बिल्कुल यकीन के साथ इस आयत को पढ़ लिया, वो कभी भी वो बंदा अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं निकालता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं मेरे शऊर से आपको कह सकती हूँ कि बिल्कुल अल्लाह सुब्हान ताला भी गवाह इस चीज से कि मैंने कभी अपनी जबान से ऐसी बातें नहीं निकाली। यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हान ताला खुद पर गौर करने की बात क्या कह रहे हैं सूरह अनाम में, हमें ना सूरह तकरीबन निसा में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर तुम पर कोई परेशानी आती है तो दैट्स फ्रॉम यू, वो तुम्हारे अपने करतूतों की वजह से आती है। अल्लाह का शुक्र है जब अल्लाह के कलाम में इस चीज को पढ़ लिया मैंने, अल्लाह का शुक्र है जब नहीं पढ़ा था उससे पहले भी कभी किसी को ब्लेम नहीं किया कि बिकॉज ऑफ यू एंड बिकॉज ऑफ यू, तेरी वजह से ऐसा हुआ, तू ऐसा तो तू ऐसा तो। बताइए फिर मेरा रोल कहाँ गया मेरी जिंदगी में? और सारे लोग मतलब दूसरे लोग ही करते तो मेरा खुद का रोल कहाँ गया? तो ये कुरान आपको गौर फिक्र देता है। अल्लाह सुब्हान ताला तो बोल रहे हैं कि अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो तुझे कोई अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो उसको दूर कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो पूरा यकीन है अल्लाह सुब्हान ताला की इस आयत पे कि अल्लाह मुझे कोई भी परेशानी लाहक होती है, कोई तकलीफ लाहक होती है तो तेरे सिवा कोई नहीं है जो उसे दूर करे। ये डेफिनेटली, इसको देखिए, इस पर अपने अकीदे को दुरुस्त करिए, अपने दिल और दिमाग में ठुका लीजिए इस बात को। और कभी आपको कोई कहे ना ओहो मुझे ऐसा लगता है उसकी वजह से तेरा कुछ नुकसान हो गया है, आप कहें कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की बंदी ऐसी गलत बात क्यों करती हो? मेरी कोई गलती है जिसकी वजह से मेरे ऊपर ही परेशानी आई है, मैं किसी और को इसका ब्लेम क्यों दूं? ये अल्लाह पे झूठ बांधने वाली बात हो जाएगी। अल्लाह सुब्हान ताला तो कुछ कह रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह लोग कुछ कहते हैं, तो मुझे और आपको तो अल्लाह की बात माननी है। ठीक है, आज के बाद आपके सामने अगर कोई कहे तो आप क्या कहें, उसको यादें समझाएं। अच्छा, उसी के साथ साथ अपने आप को दुरुस्त करें, आप न कहें। लोग कहते हैं कहने दे, क्यों? क्योंकि आज लोगों के पास ये कलाम नहीं पहुंचा है जो अपनी जबान से बातें निकाल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तो अल्लाह का कलाम पहुंच गया ना, अल्हम्दुलिल्लाह ना। हाँ, उसी के साथ साथ और अगर वो तुझे कोई खैर पहुंचाना चाहे तो वो हर चीज पर कुदरत रखता है, सुभान अल्लाह। और कहिए अल्लाह मुझे पूरा यकीन है इस बात पे। देखिए यहाँ पर एक बात मैं आपसे पूछूं कि अल्लाह का शुक्र है कि जब ये जो है आपको खुश रहने का एक फॉर्मूला बताया जा रहा है जो मेरे रब ने, यानी कि क्या है वो फॉर्मूला क्या है कि जो मेरा रब अता करेगा कोई उसे रोक नहीं सकता। इस जुमले को लिख लीजिए कहीं पर, जो मेरा रब मुझे अता करना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। जरा पूछे, अपने आप से पूछे, आपको यकीन है इस बात का? अगर है तो कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि जो तू मुझे देना चाहता है कोई दुनिया में ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करिए ये आयत तो दिल में ऐसी रची बसी है मेरे कि आज कुछ मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। कुछ नहीं भी दिल नहीं मिला, दिल किया बड़ा की चीज मिल जाए तो भी मुतमईन रहता है मेरा दिल, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अल्लाह जब मेरा यकीन इस बात पे बैठ गया है कि जो तू मुझे अता करेगा उसमें मेरे लिए खैर है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर मैं क्यों जो चीजें मुझसे चली गई हैं मैं क्यों उस पर जो है यानी कि गम करूं? अच्छा, मैं गम करते बैठूं तो पता आपको क्या होता है, जब इंसान गई भी चीजों का गम करता है ना तो प्रेजेंट में जो उसके पास नियामतें हैं यकीन करिए उसकी भी नाशुक्री कर रहा है। देखिए हाल में जो आपके पास चीजें है ना, एंजॉय करिए, इसको एंजॉय करिए। ये पूरा कुरान आपको लाइफ एंजॉयमेंट सिखाता है। ऐसा मत सोचिए कि आपकी लाइफ जो है स्टक हो जाएगी, खराब हो जाएगी या फिर एकदम स्टेबल एक मतलब रुक जाएगी कहीं, नहीं। ये पूरा कुरान आपको लाइफ एंजॉय सिखाता है। क्यों? क्योंकि ये कुरान मुझे हाल में जीना सिखाता है। बी प्रेजेंट, कई भी चीजों का गम मत करो। सूरह आले इमरान में तकरीबन बात गुजर चुकी है। मैं आप लोगों से कहूंगी कि आप लोग जो मिस कर चुके हैं पीछे के अच्छे सिपारे उसको सुनिए ताकि पूरा कुरान आपको जो है वो कम्प्लीटली अल्लाह के हुक्म से मिल जाए। ठीक है,
अब उसकी बात देखिए कि अल्लाह सुब्हान तआला, एक बात जो मैंने अपने लिए जिस चीज को रखा है कि देखिए कि जिसने रब को राजी किया ना, यकीन मानिए इस बात पर, बहुत मेरा तो बहुत ज्यादा ही दिल ठुका हुआ है इस बात से, जिसने अल्लाह को राजी कर लिया, फिर यकीन करिए फिर रब उसके साथ जो भी मामला करेगा ना उसमें खैर ही होता है, यस डेफिनेटली। अच्छा, बज़ाहिर दूसरों को क्या लगता है, हाय बेचारी इसके साथ क्या हो गया, हाय बेचारी, जहाँ दुनिया वाले आपको बिचारी बिचारी कहते रहते हैं, वहां पर आपको पता है आप अंदर से बिल्कुल सेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं मेरे रब से राजी हूँ, तो हाँ इट इज इम्पॉसिबल कि मेरा रब मुझसे राजी नहीं होगा, नहीं, मेरा रब भी मुझसे राजी है। देखिए, बी कॉन्फिडेंटली बात करिए, बी कॉन्फिडेंट, बिल्कुल एकदम ऐसी टूटी फूटी बात मत करिए कि हाँ शायद मेरा रब मुझसे राजी होगा, नहीं, कॉन्फिडेंट है। एक बंदा जो कॉन्फिडेंटली बात करता है उसका अलग अंदाज होता है, एक जो कॉन्फिडेंट नहीं होता है वो इस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल थकी हुई बात करता है। आप कहिए कि नहीं, मैं मेरे रब से राजी हूँ और मुझे उम्मीद है कि मेरा रब भी मुझसे राजी होगा, ठीक है। और देखिए कि जो बंदा रब से राजी हो जाए तो कैसे पॉसिबल है कि जो अल्लाह सुब्हान ताला ने उसको दिया है उसको पॉसिबल ही नहीं कि उसको अपने लिए जो वो शर समझे, इम्पॉसिबल, बल्कि वो हर काम में अपने लिए खैर ही खैर ढूंढता है अल्लाह की तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर देखिए कि फिर कुछ भी उसको मिले या छीने, सब में अल्लाह की रजा होगी, ये सोचता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस चीज को अपनी आदत बनाए, इसको अपने इस आयत से अपने अकीदे को दुरुस्त करें। आज के बाद आपको कोई भी ऐसा जुमला कहे तो बिल्कुल इसको निडर होकर और बिल्कुल इसकी आंखों में आंखें डाल के कहिए, मैं मेरे रब से राजी हूँ, जो मेरा रब करता है उसमें सब बेहतर होता है। तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम्हें लगे मेरी बला से जाए भाई, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ बुरा हो रहा है, लेकिन मैं तो अपने आप में मुतमईन हूँ। और देखिए फिर रब से राजी होने की सबसे बड़ी जाहिरी सूरत, कि देखिए आप रब से राजी है, आप सबको शो नहीं कर सकती ना, ठीक है, अपने आप में जज कर ले। आप अगर रब से राजी हैं तो सबसे बड़ी चीज कि आप हालात, जो सिचुएशन आपके साथ होती है उसमें सेटिस्फाइड कितनी है, ठीक है, बिल्कुल इस चीज से अपने आप को जान सकती है। और इतनी खूबसूरत बात आयत नंबर 18 में अल्लाह ताला बता रहे हैं, वहुवल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही, और वही अल्लाह सुब्हान ताला पूरी तरीके से गालिब है अपने बंदों पर। और क्यों अल्लाह ने ऐसा कहा, किस बेस पे अल्लाह ने कहा, इस बेस पे क्योंकि अल्लाह ताला जो है वो, देखिए कि अल्लाह सुब्हान ताला अपने बंदों पे पूरा पावर रखने के बावजूद वहुवल हकीम और खबीर, और उसका पावर दिखता है कि ये अल्लाह की हिकमत है और बहुत बाखबर है वो। और ये अल्लाह ताला बता रहे हैं, सब कुछ जानते हुए भी मैं सबकी खबर रखने के बावजूद पकड़ नहीं करता हूं मैं। और देखिए ये काहिर जो है ना, ये बिल्कुल उर्दू के मायने में मत लीजिए जबरदस्त, नहीं, बल्कि ये क्या है कि कोई भी अल्लाह के हुक्म से हटेगा तो डेफिनेटली उसकी पकड़ होगी। वो ऐसा जबरदस्त है कि अल्लाह से हटकर, अल्लाह के हुक्म से हटकर आपने कुछ काम किया तो वो अपने बंदों को पूरी तरीके से पावर रखता है कि वो पकड़े। अच्छा, नहीं पकड़ रहा है तो इसमें उसकी हिकमत और वो बाखबर है। तो मुझे और आपको किसी की टोह में नहीं लगना है, मुझे आपको किसी की जो है वो बातें नहीं माननी है। और बहुत बड़ी बात का खुलासा जो यहाँ पे किया गया है, बहुत क्लियरली मैं आपसे कहूँ कि देखिए कि बिल्कुल आयत जो चली आ रही है, तो लोग अगर आपको गलत बातों की तरफ बुलाते हैं, गलत बातों की तरफ जो है वो अमल करने की जोर देते हैं और आपको पीयर प्रेशर में आपको लाते हैं, ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो, दीन से हट के काम करने को कहते हैं, तो बिल्कुल अल्लाह सुब्हान ताला ने कह दिया कि नहीं, मैं हिकमत वाला हूँ, मैं सब खबर रखता हूँ। अगर लोगों के कहने में आओगे और अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची भी तो याद रखो कि मेरे सिवा ना तुम्हारा कोई वली, ना पीर, ना बुजुर्ग, ना ही तुम्हारे कोई जो है वो मौलाना है, ना तुम्हारे जो कोई भी बड़े, कोई बचा नहीं सकता है, सिर्फ मैं दूर करने वाला हूँ। कभी कभी अब्बा मैं तेरी रहमत की उम्मीदवार हूँ, फिर मुझे एक लम्हे के लिए भी मेरे नफ्स के हवाले न कर और मेरे सब हालात संवार दे, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है।
اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے اللہ میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے اللہ جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے اللہ ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔